Good afternoon, everyone. Uh, let's start this particular session. Mm, Before that, you have to recap all those the previous comments we have already discussed. That is, we have already discussed that this ping. We have already discussed ping, ARP, hostname, IP config all, IP config renew. All these things we have already discussed. IP config release, this actually मैं बोल दिया था, ये जो कमेंट्स है, दिस कमेंट्स एक्चुअली अलाउज टू disconnect that particular network. IP config release disconnect that particular network. So simply, again, this only works when LAN is connected. This only works when LAN is connected, because जो भी हम लोग कमेंट यहाँ पे लिखे हैं, ये this IP config, all the IP config commands actually work for LAN connection, not for wireless connection. So that's why that this will not work in my PC. But this this NB stats A, we are now doing from NB stats A. Please see what will happen. Let's open CMD. रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि मैं तुम लोगों को बोला था इससे पहले भी, ऑलवेज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, because some commands are restricted by, if you are using the another user, then it is restricted, it may be restricted. So NB stats A, let's start. What it will give? NBT stat here you can see NBT stat A, it gives the list of root machine name table. That means it will give the working principle of NB stats. It will give some, please अच्छा से समझने का कोशिश कर, नेट बायस का जो भी कनेक्शन है टीसीपी आईपी के साथ, नेट बायस का जो भी आईपी टीसीपी आईपी कनेक्शन है, उसका स्टैटिस्टिक्स देगा. this is the this is the problem solving command for this particular thing. This has that's why it is called stats. NBT stats net bias. This NBT stands for net bias over TCP IP. That is NBT, net bias over TCP IP. That is net bias over TCP IP, NBT. So that is the full form of NBT. So this नेट बायस का जो भी वर्किंग है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्यूशन करने के लिए ये कमांड यूज होता है. सिंपली you can see the here you can see this display protocol statistics current TCP/IP connection of NBT, only net bias over TCP/IP का जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहा है, वहां पे यहाँ पे रिलीज कर रहा है. सी another thing यहाँ पे, let's take A. What it will be? These two things are adapter status. These two things are adapter status. Here it is showing the how we can use that particular thing. How we can use that particular thing, that things it will give how we can use this NBT. Now you can see, let's write N.
ओ एज बीटी हो गया। सी सी वी आर नेट बायस लोकल केबल, जो भी नेट बायस लोकल हियर यू कैन सी एडबीटी स्टैट्स एन क्या देना चाहिए था, लिस्ट लोकल नेट बायस नेम्स, क्या देना चाहिए था, लिस्ट लोकल नेट बायस नेम्स, लोकल नेट बायस नेम्स को यह देगा एन एन देने से, ये जो इंफॉर्मेशन है ये ए दे रहा था, ये जो इंफॉर्मेशन है ये ए दे रहा था सिंपली, ये जो इंफॉर्मेशन है क्या क्या ये कैसे वर्क करेगा ये इंफॉर्मेशन दे रहा है नेट बायोस नेट एनबीटी स्टैट्स ए। अब सिंपली सिंपली देखो यहाँ पे क्या देना चाहिए था एन से, लोकल नेट बायोस नेम्स। देखो हम लोग मेरे पीसी, मेरा जो पर्टिकुलर पीसी है वो किस किस पर्टिकुलर नेट बायोस से कनेक्टेड है, हाउ दे आर कनेक्टेड विद नेट बायोस with that with the geo, this is geo service। so here user pc, this 20 is a port number, see these are the port number, these two are unique port number and that is restricted, मतलब मेरा पीसी और कोई कनेक्शंस यहाँ पे आके इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, नेट बायस से कनेक्शंस नहीं हो पाएगा। सो हियर यू कैन सी माय आईपी एड्रेस, और इस आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ जो भी लोकल नेट बायस है उसका इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। एंड हाउ दिस इज ओपन और रेस्ट्रिक्टेड, दिस इज ओपन और रेस्ट्रिक्टेड, दैट थिंग्स इट विल प्रोवाइड, दैट इंफॉर्मेशन इट विल प्रोवाइड एनबीटी स्टैट के। नाउ सी नेट डिएग, अब सिंपली देखो ये यहां पे क्यों नहीं हो रहा है। सी NetDiag is a network testing utility perform variety of network diagnostic tests, मतलब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है कि तुम्हारा नेटवर्क सिक्योर है, कितना सिक्योर है, कौन कौन सा वेराइटी ऑफ नेटवर्क तुमसे कनेक्टेड है। बट इससे पहले तुम्हें NetDiag को इसको इंस्टॉल करना होता है। सो दैट इज द थिंग, यहाँ पे अगर ये चीज सी इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, सीडी में मिलेगा ये पर्टिकुलर वर्ड। सो ये पर्टिकुलर एक प्रोटोकॉल है और एक सॉफ्टवेयर लाइक सॉफ्टवेयर है। ये NetDiag को तुम्हें पहले तुम्हारा पीसी में इंस्टॉल करना होगा, देन इफ यू ट्राई टू राइट, इफ यू ट्राई टू रन, देन इट विल रन। मेरे पीसी में इंस्टॉल नहीं है NetDiag, दैट्स व्हाई NetDiag is not recognized internal external command. Is the thing clear? यहाँ पे देखो NetDiag is a network testing utility that performs variety network diagnostics test, मतलब तुम्हारा नेटवर्क कितना सिक्योर है, तुम्हारा नेटवर्क कैसे रन कर रहा है, कितना क्या उसका मतलब टाइम है, क्या सब इंफॉर्मेशन तुम्हें डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू मिलेगा। बट NetDiag इंस्टॉल होना चाहिए तुम्हारा पीसी में, अलाउइंग यू पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स ऑफ योर नेटवर्क, पिन टू पिन कौन सा पिन में क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इट विल गिव। बट NetDiag is not installed by default, but we can install it from Windows XP CD। Windows XP CD से मैं इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद ही ये वर्क करेगा NetDiag। सो दैट इज द थिंग, एकदम इन डेप्थ में जाके पूरा तुम्हारा नेटवर्क एनालिसिस दे देगा, दैट इज द वर्क ऑफ NetDiag। See next, NetStat। What it will giving, तुम्हारा नेटवर्क का स्टेटस दे रहा है। See what it will giving, नेटवर्क का स्टेटस दे रहा है, दैट मींस एक्टिव कौन कौन सा पोर्ट है तुम्हारा, पोर्ट इधर इन द पोर्ट, मतलब कौन कौन सा पोर्ट से तुम्हारा HTTP रिक्वेस्ट और HTTP रिक्वेस्ट आ रहा है। दैट मींस ये जो जूम मेरा क्लास हो रहा है, कोई ना कोई
कोई ना कोई पोर्ट के थ्रू ये कनेक्शन हो रहा है, ये नेट से कनेक्टेड हो रहा है. So that connections, all the connections it will give, but only using these two particular IP address. This two particular IP address. What is this two particular IP address? देखो यहाँ पे दो particular IP address हो रहा है. एक self loop IP address, this is 127.0.0.1. This is self loop IP address. And उस IP address के साथ कौन कौन सा पोर्ट ओपन है? These are the port numbers. And साथ में this part, ये जो मेरा आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस है ये, लेट्स सी, मेरा आईपी एड्रेस है ये, उस आईपी एड्रेस के साथ कौन कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है और किस पोर्ट के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इंफॉर्मेशन, ऑल द स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली इट इज गिविंग. सो नेट स्टैट्स गिव्स ऑल द स्टैटिस्टिक्स, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा पोर्ट के थ्रू तुम ये डेटा कनेक्शन दे रहे हो, कौन सा पोर्ट से क्लोज है, कैसे ये एस्टैब्लिश्ड है, कौन कौन सा. सी फॉरेन एड्रेस, व्हाट इज द फॉरेन एड्रेस, दैट मींस ये तुम्हारा एड्रेस और ये जो नेम एड्रेस, दैट मींस ये आईडी के साथ जुड़ा हुआ है और ये एक्चुअली फिजिकल एड्रेस जो कि नॉर्मली नाम से पुकारा जाएगा. दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग. आप सिंपली यहाँ पे एक चीज, छोटा सा चीज नोटिस करो, मेरा जो यूजर पीसी का पोर्ट है और जो सेल्फ लूप का पीसी का पोर्ट है, देखो 17 और 18 दोनों रिवर्सली कनेक्टेड है. 17 से 18 कनेक्टेड है, 18 से 17 कनेक्टेड है. प्लीज सी दिस थिंग, रिवर्सली कनेक्टेड है. 17 से 18 कनेक्टेड है, 18 से 17 कनेक्टेड, एवरीवेयर इट इज देयर. सी हियर 19 से 20 कनेक्टेड है, 20 से 19 कनेक्टेड है. सो हियर इट इज, व्हाट इज द रीजन इज बिहाइंड दिस, एक रिसीव कर रहा है, एक सेंड कर रहा है. सिंपली दैट इज द थिंग, सिंपल थिंग. दोनों साइड में दो पोर्ट है, दो पोर्ट लॉजिकली कनेक्ट हुआ है, दो पोर्ट लॉजिकली कनेक्ट हुआ है. दैट मींस दोनों साइड में दो पोर्ट है, एक यूजर पीसी का पोर्ट है, एक तुम्हारा नेटवर्क का पोर्ट है. नेटवर्क से जो पोर्ट, जिस पोर्ट से थ्रू आ रहा है, अब उस दोनों पोर्ट कैसे इक्वली कनेक्ट हुआ है, दिस थिंग इज गिविंग. सी एवरीवेयर इट इज देयर. 17 से 18, 18 से 17, यहाँ पे देखो 42 टू 43, 43 टू 42, एक में, मतलब हाउ दे आर लॉजिकली कनेक्टेड ईच अदर. दिस इंफॉर्मेशन इज गिविंग बाय दिस नेट स्टैट. इज द थिंग क्लियर? Is the thing clear? Now NS lookup. Sorry. NS lookup. See what it actually giving. It is giving DNS सर्वर आईपी एड्रेस. तुम्हारा कौन कौन सा आईपी एड्रेस तुम्हारा DNS सर्वर में अवेलेबल है. ये जो तुम्हारे यूजर्स, तुम जो पीसी यूज कर रहे हो, उस पीसी में एक लॉजिकली DNS सर्वर बना है. तुम जो नेट करते हो, एक्चुअली इट इज सर्चिंग बाय द आईपी एड्रेस, बट तुम क्या लिखते हो, google.com लिखते हो ना. google.com तो लेता नहीं है, वो DNS सर्वर में जाके वो चेंज करता है अपना आईपी एड्रेस से वो सर्च करता है. सो दैट इंफॉर्मेशन एक्चुअली गिविंग. सी NS लुकअप के बाद ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है. सी ये चल रहा है कंटिन्यूअस. ये इसका आईपी एड्रेस देखो, ये आईपी एड्रेस अननोन है इसके लिए, ये आईपी एड्रेस अननोन है इसके लिए. ये बोल रहा है ये आईपी एड्रेस उस पे है नहीं अवेलेबल. लेट्स सी माय आईपी एड्रेस, मेरा आईपी एड्रेस देते हैं, क्या देखते हैं होता है कि नहीं. सी यहाँ पे आईपी एड्रेस मैं देता हूँ. क्या था मेरा आईपी एड्रेस, टेल मी. 192.168.43.90, ये मेरा आईपी एड्रेस था. सी इट इज गिवन यूजर पीसी, मेरा यूजर पीसी है. नेम देखो, नेम के साथ चेक कर रहा है, मार्ज कर रहा है. अगर यहाँ पे आईपी एड्रेस दिए तो ये अपना नेम दे दिया, आईपी एड्रेस दिए तो नेम दे दिया. लेट्स से google.com, गूगल का आईपी एड्रेस देगा. सी google.com का आईपी एड्रेस दिया ये. सी
google.com का आईपी एड्रेस दिया, मैं नेम दूंगा उसका आईपी एड्रेस देगा, मैं आईपी एड्रेस दूंगा उसका नेम देगा। सो व्हाट इज द टास्क ऑफ एनएस लुकअप? इज द थिंग क्लियर? जीमेल लिखो, gmail.com का आईपी एड्रेस देगा, सी gmail.com का आईपी एड्रेस दिया, पहले उसमें नहीं था, फिर उसने सर्च किया, सर्च करके यहां लाया, ये अननोन था उसके लिए, बट ये देखो gmail.com का आईपी एड्रेस ये है। सो दैट एक्चुअली फाइंड, सो डीएनएस सर्वर का जो जो डीएनएस सर्वर हैंडल करने के लिए तुम्हें, डीएनएस सर्वर में क्या रहता है, नेम के साथ तुम्हारा आईपी एड्रेस, दो ही चीज रहता है। सो यही डीएनएस सर्वर को हैंडल करने के लिए आई हैव कमांड एनएस लुकअप, टोटल एनएस लुकअप, ये डायग्नोस्टिक ऑफ एनएस प्रॉब्लम, डीएनएस प्रॉब्लम। अगर डीएनएस में कोई कोई एक पर्टिकुलर नेट नहीं खुल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर साइट नहीं खुल रहा है, तुम्हें चेक करना है कि ये साइट में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, देन यू हैव टू चेक कि ये चेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, दैट मींस जीमेल तक ये पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, दैट ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल गिव बट दिस एनएस लुकअप। इज द थिंग क्लियर टू यू? इज द थिंग क्लियर टू यू? दिस इज एनएस लुकअप। नाउ सी, अब यहाँ पे एग्जिट करने के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जिट, सी इट विल एग्जिट। तुम एनएस लुकअप के अंदर ही था, जब तक तुम एग्जिट नहीं लिखोगे तब तक वो एनएस लुकअप बाहर नहीं आएगा, मतलब डीएनएस सर्वर में घुस गया था, ये डीएनएस सर्वर में चला गया था। नाउ पाथ पिन, how to use that thing is given, how to use path ping, how to use that thing is given. Now I am giving see p में क्या देखिए देखिए देख रहा हूं, क्या दे रहा है, ये वैल्यू मस्ट बी सप्लाइड फॉर ऑप्शन पी, दैट मींस पी के बदले तुम्हें देना क्या है, 3 दोगे तो 3 मिली सेकेंड वहां पे काम करेगा। सो दैट दिस, लेट्स टेक a target name address must be specified, अगेन सब वहां पे खुद ही बोल देगा कि क्या करना है तुम्हें। लेट्स टेक अगेन, what pathing will do, let's take 192.168.43.90, सी क्या दे रहा है, वेट करके देखो क्या एक्चुअली आ रहा है। कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर 25 सेकेंड्स, टोटल तुम्हारा ये स्टैटिस्टिक्स देगा कि कितना होस्ट आया, कितना होस्ट रिसीव किया, कितना होस्ट टोटल, ये सर्च क्या किया, पर अच्छा से शायद समझो, ये सेल्फ लूप एड्रेस, ये मैंने एक आईपी एड्रेस दिया, मतलब इस आईपी एड्रेस को वो सर्च करेगा, उस आईपी एड्रेस को कुछ डेटा सेंड करेगा, डेटा सेंड करेगा। अब उस आईपी एड्रेस को क्या करेगा, वो आईपी एड्रेस डेटा सेंड किया, सेंड करने के बाद वो 45 सेकेंड तक उसको वेट करेगा, चेक करेगा, सॉरी 25 सेकेंड तक वो वेट करेगा, इतना डेटा उसका लॉस हो रहा है। हर एक बार वो डेटा को सेंड करते जाएगा, सेंड करते जाएगा, सेंड करते जाएगा, सेंड करते जाएगा, हर 25 सेकेंड्स तक ये वेट करेगा, वेट करके चेक करेगा, ओके इतना परसेंटेज डेटा लॉस हुआ है, सी ऑल द स्टैटिस्टिक्स इट विल गिविंग। देखो 100% डेटा सेंड हुआ है, लॉस्ट 0%, 100% डेटा सेंड हुआ है, लॉस्ट 0% हुआ है। सो दैट मीन्स एक भी
एक भी डेटा पैकेट लॉस नहीं हुआ है। लिंक हर जो भी डेटा तुम भेजे हो पूरा पूरा इसमें उतना ही डेटा सेंड हुआ है। सो दैट इज द थिंग इट एक्चुअली प्रोवाइड्स। पाथ पिंग मींस टोटल एक दो नोड के बीच में जो पाथ क्रिएट हो रहा है उस पाथ में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये इसको फाइंड आउट कर रहा है। अगर डेटा वहां पे लॉस हो रहा है, उस पाथ में डेटा लॉस हो रहा है, वन टू वन कनेक्शन हो रहा है, so that actually it will give. So here path ping is unique windows and basically combination of ping and preset commands. Path ping traces the root of destination address, then launches 25-second test. टोटल रूट को वो चेक करेगा, 25 सेकेंड तक इसमें वेट करेगा एंड उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स जनरेट करेगा कि कितना परसेंटेज डेटा लॉस हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पाथ पिंग तुम्हें दे देगा कि हाँ डेटा लॉस हो रहा है, अदरवाइज डेटा लॉस नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि योर पूरा नेटवर्क इज वेरी ओके। Now ping command already we have already told. We have already done this ping command. Ping command क्या करता है? Now root. What root will do? Root manipulates network routing tables. Root manipulates network routing tables. अब मैं बोला था तुम लोगों को ये रूट और ट्रेसेट तुम्हें समझ में आएगा जब तुम राउटिंग टेबल समझोगे। राउटिंग टेबल समझने के लिए फिर तुम्हें नेटवर्क लेयर में जाके थोड़ा सा समझना होगा राउटिंग टेबल में रहता क्या है। राउटिंग टेबल में रहता है सिंपल, अच्छा से एक छोटा सा हिंट में देखिए, आज मैं ये दोनों पढ़ के खत्म कर दूंगा। ये राउटिंग टेबल्स में रहता क्या है? राउटिंग टेबल्स में जनरली रहता है कि कैसे राउटिंग टेबल एक्चुअली ट्रेस टेबल ऑफ राउटर्स दैट मींस एक राउटिंग, हर एक राउटर में एक राउटिंग टेबल होगा। इसमें क्या होगा, कहां मुझे हर एक का आईपी एड्रेस ये स्टोर करके रखेगा, सिंपली आईपी एड्रेस, उसके साथ और भी कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, बट इतना ही समझ के चलो अभी कि राउटिंग टेबल में सिंपली एक डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड कुछ लॉजिकल चीज उसमें रहता है। अब वहां पे वो क्या करता है एक्चुअली, राउटिंग टेबल क्या करता है, इट विल फाइंड द एप्रोप्रिएट पाथ। राउटिंग टेबल क्या करता है, इट विल फाइंड द एप्रोप्रिएट पाथ। अगर एक नोड 5 नोड से जुड़ा हुआ है तो हर एक नोड से कहीं भी साइड से वो डेटा तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है। 5 के टेबल से जुड़ा हुआ है तो दैट मींस 5 पाथ उसका निकल रहा है। It will choose the right path. It will help to choose the right path. So this route actually gives manipulate either routing table. Routing table के अंदर में जाके these are the things, these are the commands actually these have. ये सब commands है कि जैसे print routing table है, add एक routing table है, delete एक routing table है, change एक routing table है। वो राउटिंग टेबल के अंदर में जाके वो डेटा पैकेट को डेटा सेंड कर देता है, मतलब कुछ चेंज कर देता है। सी राउट प्रिंट -6 ये क्या करेगा, रूट प्रिंट -6 मतलब ये 6 सिंपली देखो, लेट्स सी सारे 6 भाई आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस यहां शो हो रहा है, राउटिंग टेबल को पूरा शो कर दे रहा है। यहां प्रिंट राउटिंग टेबल, प्रिंट का जो राउटिंग टेबल है ये दिस प्रिंट ऐड चेंज, these are the routing tables, one routing tables. Prints the route, adds the route, deletes the route, so these are the route changes। यहाँ पे जाके पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें जाना है, पर्टिकुलरली कोई एक राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन तुम्हें अगर लेना है, देन यू हैव टू डू दिस रूट कमांड। सो दैट मींस आईपी वर्जन 6 के लिए -6c, force using IP version 6, force using IP version 4 that is 4 -4। तो IP version 4 को यूज करने के लिए -4 देना है, -6 मैंने दिया, दैट मींस IP version 6 को इन 6 वर्जन को
यूज करने के लिए यूज किया गया है, 6 वर्जन को दिखाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया गया है. दैट थिंग एक्चुअली गिव्स, these are the thing actually gives the root command. Here you can see the addresses, IP addresses of root table. This is right routing table, print routing table. Actually I am giving print routing table, so print routing table ही दे रहा है वो. देखो यहाँ पे मैंने लिखा था root, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे root print 6 -6. so यहाँ पे C मैंने शेष वर्जन 6 दिया था, so it will give the IP version 6. Okay, now tracet. See, ट्रेसेस में क्या दे रहा है तुम्हें, ट्रेसेस अकेले काम नहीं करेगा, इट विल यूसेज दे दिया. सी -4 आई एम गिविंग. टारगेट नेम एड्रेस मस्ट बी स्पेसिफाइड. दैट मीन्स एक टारगेट नेम होगा, दैट मीन्स तुम्हें मैं दे रहा हूं सी 1 मिलीसेकेंड में शेयर मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स इट हैव यूजर पीसी हैव ट्रेसिंग रूट ऑफ यूजर पीसी. यूजर पीसी का रूट को ट्रैक किया गया एंड ट्रैक करके उसको मिला ओवर मैक्सिमम ऑफ 30 होप्स. 30 होप्स से ज्यादा इसमें कनेक्टेड है, मतलब 30 कनेक्शन से ज्यादा है. और ये सिंपली सी द थिंग, एक पैकेट को सेंड करने के लिए 1 मिलीसेकेंड टाइम लग रहा है. एक सेकेंड पर्टिकुलर डेटा को सेंड करने के लिए 1 मिलीसेकेंड टाइम लग रहा है. दैट इज द थिंग द ट्रेस विल गिव. So trace will command will display list of all routers that packet has to go through from to get computer through tracet run any other computer of the internet. That means तुम यहाँ पे तुम्हारा कंप्यूटर अगर लैन से कनेक्टेड हो ना, कोई एक पर्टिकुलर तुम्हारा ट्रेस से तुम अपना पीसी से दूसरा पीसी का इंफॉर्मेशन भी, मतलब दूसरा पीसी से कनेक्शन तुम्हारा पूरा रूट में कितना राउटर से वो कनेक्टेड है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन इट विल गिव. अगर तुम अपना डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे दे दो, डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे दे दो, थ्रू हाउ मेनी राउटर इट विल प्रोवाइडिंग, इट विल गिविंग ऑल द लिस्ट इट विल गिव. दैट मींस अगर मान लो मेरा एक पीसी से, मेरा लैन से कनेक्टेड है, तुम्हारा इससे क्या बोलते हैं, मेरा कंप्यूटर का लैब का कोई नेटवर्क से, कोई लैन से मेरा ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कितना राउटर से ये कनेक्टेड होके जाएगा, all the router information it will give, and उस राउटर से कितना टाइम में वो पहुंचेगा, all this information this route actually gives. कि particularly पूरा रूट को देखेगा कि how many path, how many routers you have in the routes, and total उसमें देखो यहाँ पे these are the number it is given. मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता तुम लोगों को, क्योंकि ये मेरा एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है और मेरे पास एक ही पीसी है, मतलब एक ही पीसी. अगर दूसरा पीसी सेम नेटवर्क से कनेक्टेड होता तो वो भी तुम्हें दिखाता कि हाँ उसके तुम्हारा उसका एक आईपी एड्रेस होगा, उस आईपी एड्रेस के थ्रू, मतलब अगर मान लो मेरा इसके साथ एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन भी कनेक्टेड है, मोबाइल फोन का एक आईपी एड्रेस होता, उस आईपी एड्रेस के साथ मोबाइल का जो आईपी एड्रेस है उस वहां पे ये देना पड़ता, ये आईपी एड्रेस के बदले उस पर्टिकुलर मोबाइल का आईपी एड्रेस देना पड़ता, और मुझे दिखाना उस टाइम पे देखते कि यहां से उस मोबाइल तक जाने के लिए डेटा कितना राउटर को फॉलो करते हुए जा रहा है. यहां पे मैं खुद का ही आईपी एड्रेस लिया, इसमें दिखा रहा है कि हाँ एक राउटर के थ्रू जा रहा है. व्हाट इज दैट राउटर? सेल्फ लूपिंग राउटर, बिकॉज मैं खुद के पास डेटा भेज रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है कि बीच में कोई होगा उस डेटा को रिसीव करके फिर उसके पास भेज रहा है.
So that is a self looping address. This is the one to ये किसको लेके, ये कौन सा एड्रेस को लेके कर रहा है? Here is the address. ये जो मैंने दिखाया था तुम लोगों को, here this is called self looping address. इस एड्रेस के थ्रू वो जा रहा है, इस एड्रेस के थ्रू जा रहा है। ये एक आईपी एड्रेस है, बीच में वर्क कर रहा है कि बीच में डेटा ले रहा है और फिर मुझे ही भेज रहा है। This is self looping IP address. This is 127.0.0. Specifically it is. जब IP address समझाएंगे तब ये भी समझाएंगे। This is self looping address. That means ये कभी और कोई एड्रेस हो नहीं सकता, और किसी का एड्रेस नहीं हो सकता। All machines have this self looping IP address. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? अब तुम्हें करना क्या है? Simply तो ये टोटल बेसिक कमेंट्स हम बता दिए। ये हम पोस्ट कर देंगे गूगल क्लासरूम में। दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आई विल पोस्ट इन द गूगल क्लासरूम, एंड साथ में ये बेसिक आईपी एड्रेस का एक पर्टिकुलर तुम्हें कॉपी, ये एक पेज तैयार करने बोलेंगे जिसमें हैंड रिटन, तुम लोग हैंड रिटन, प्लीज बी स्पेसिफिक, हैंड रिटन हर कमेंट्स का हैंड रिटन एक सॉफ्ट कॉपी बनाओगे। अगर नहीं तो दूसरा ये भी हो सकता है, अगर तुम पीडीएफ में बनाने का कोशिश कर रहे हो थ्रू, तो हर, जैसे कि ये मैंने दिखाया, दो वे है इसको तुम्हें करने का। जैसे ये कमेंट्स लिखे, इस कमेंट को रन करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आ रहा है, दैट इज द बेटर ऑप्शन। ये सेकेंड ऑप्शन इज द बेटर ऑप्शन। जो स्क्रीनशॉट आ रहा है इसको पहले लिखो, उसके बाद तुम्हारा स्क्रीनशॉट को यहां दिखा दो। उसके बाद फिर ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट यहां पोस्ट कर दो। फिर ये लिखो, तुम्हारा जो रन कर रहे हो स्क्रीनशॉट यहां पोस्ट कर दो। इन दैट वे यू हैव टू मेक वन सिंगल PDF and then you have to upload it. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? जवाब दो। सर सेकंड ऑप्शन समझ में नहीं आया। सेकंड ऑप्शन क्या है? मैं ये लिखूंगा सर जितना डिफाइन, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। ये कमेंट के बारे में मैं तुम्हें जिस्ट लिख दिया, ये मैंने लिखा, ठीक है, ये तुम लोग भी लिखोगे, इसको तुम लोग भी लिखोगे। उसके बाद ये रन करने के बाद तुम्हारा मशीन में ये रन करने के बाद क्या दे रहा है, तुम्हारा मशीन में ये रन करने के बाद क्या एक्चुअली आउटपुट दे रहा है, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पोस्ट करोगे, यहाँ ऐड कर दोगे स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट ये लिख दो, जिस्ट तुम प्रोग्राम रन किए, मतलब ये कमेंट रन किए, रन करने के बाद यहाँ पोस्ट कर दो, यहाँ अटैच कर दो उसका स्क्रीनशॉट। इज द थिंग क्लियर टू यू? समझ में आया? पीडीएफ में देना है सर। पीडीएफ में मतलब पहले तो वर्ड में तुम बनाओगे। सिंपली तुम्हें क्या करना है, ऐसे देखो मैं दिखा रहा हूं। ये किया, एक वर्ड खोलोगे, जस्ट 1 मिनट इज देयर, सो कट जाएगा, जल्दी मैं कर रहा हूं। सिंपली इसको लिखे, इसके नीचे जो कमेंट प्रॉम्प्ट मैं रन कर रहा था, ये आया, कुछ रन किए, रन करने के बाद यहाँ स्नीपिंग टूल होगा, एक स्नीपिंग टूल, इसको यहां से इसे काट करो, उसके बाद यहाँ पोस्ट कर दो। इज द थिंग क्लियर टू यू? उसके बाद नेक्स्ट, आई थिंक इज बीन क्लियर। इसका एक पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बना के तुम पोस्ट कर दो गूगल क्लासरूम में। इज द थिंग क्लियर टू यू? ओके, थैंक यू। आई थिंक कट जाएगा अभी तुरंत, सो अब ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। अब मैं पोस्ट कर रहा हूं, तुम लोग वो पोस्ट कर देना, बाकी तुम लोग बना के। इज द थिंग क्लियर टू यू?
क्लियर टू यू सारे कमेंट्स? ओके सर। ओके